Hello everyone, welcome to this video. Today we are going to talk about a very important topic. We are going to be discussing what should be our strategy for the last 99 days for our CAT examination. Yes, the final lap has now begun. We are 99 days away. So we are 2-digit days away from the D day. And the whole motto of this video is to discuss a little bit about what should be our strategy from this point on. What if you are already done with the topics and now you feel like you're forgetting the topics? What if you're done with the topics, you're done with the revision? What should be your strategy to write mocks? And what happens if you're not yet completely completed the syllabus? What should be a time before which you target to complete up the syllabus, and what should be the last lap strategy so that we can bell the CAT examination? So, a little bit about myself before we go ahead and dig into this topic. I am Ajinkya, I'm an entrepreneur from Maharashtra, but I also teach. I absolutely love teaching, and that is the reason why you're seeing me on the screen over here today, right now. I teach on an academy for the CAT category, and I've myself written CAT a few times, scoring about 99 percentile. More importantly, the things which you need to know, I make students fall in love with maths through a lot of special classes and a lot of lectures and a lot of plus courses which I take on an academy. So, and including sessions over here on YouTube as well. So, that's something which I do, and I hopefully will be able to help you out with with your strategy for the last 99 days for CAT examination in this video over here as well. So, let us get started. The CAT is, of course, on the 29th of November. Not a lot of time left for the exam right now. 99 days to be exact. But it's always a special zone to be 3 months or 3 odd months away from the examination, and I think we are entering that zone right now. It's kind of like a final lap of the marathon. I'm going to talking about marathons. I'm going to be coming on that a little bit more ahead into today's video. Now, some very commonly asked questions I get. Sir, is the time enough? If we are just about starting, do you think that we will be able to bell the CAT? Or if we have just about started, is the time enough? Now, there are people who have gone ahead and cracked this examination in a month's time. So, a lot of factors come into play when we say, is the time enough? But I'll tell you something much more important, I feel. I'll tell you that this time of the year probably is the time, or this month and the next month is probably the time where most of the students, they feel that they are not ready for CAT, and then they get these thoughts of, probably just letting it be, probably trying next year, probably they lose the motivation with which they started for the examination, and so on and so forth. So, just before I answer the question, is the time enough? And I mean, there's no correct answer to the question actually, is the time enough? Let me tell you that the next few months, weeks, 10 odd weeks, 12 odd weeks are very, 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 very important, very, 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 very core for your CAT preparation strategy. We have seen tons of students who prepare very well, but then they come to the last lap and then they feel, okay, there's something which I'm missing, and I'm not getting the neck of CAT examination. But if you keep through these days, you are going to score fantastically well. Not just that, you will probably crack the CAT examination with flying colors and also get into one of the top B schools of our country. So just hang on over there, just hanging on there, you're going to get a lot of fruits. You have already ran the race. You are ahead of a lot of people already. You must have heard that खरगोश वाला स्टोरी, राइट? कि खरगोश होता है और एक कछुआ होता है. खरगोश भाग के आखिरी तक तो चला जाता है, बट फिर वहां पे वो रुक जाता है, या फिर वहां पे उसको लगता है कि वो उसके पास बहुत टाइम है. दोनों चीजें होती है. वैसे बहुत टाइम वाला भी कुछ लोगों के पास साथ होता है कि मेरी तो पढ़ाई हो चुकी है, अभी आखिरी कुछ 2-3 महीने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो वो एक फेज है कि उसमें से कुछ लोग जो खरगोश होते हैं, जो सच में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, वो रुक जाते हैं. और जो कछुए होते हैं, जो कछुए बहुत स्लोली बट पीछे से आ रहे होते हैं, वो इन 3 महीनों में वो खरगोश के आगे निकल जाते हैं. ये होता है एक सिनेरियो नंबर 1. बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कैट एग्जामिनेशन में, और इन आखिरी के 2-3 महीनों में बहुत सारा फर्क पड़ जाता है. एक दूसरा सिनेरियो, जो लोग प्रिपरेशन कर ही रहे हैं बट अब तक उनका वो परसेंटाइल हिट नहीं हुआ, दे आर गोइंग थ्रू द प्रिपरेशन फेज, दे आर स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट, दे आर कीपिंग अप ओवर देयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ.
अगर आप लोगों में से किसी ने कोई स्पेसएक्स के रॉकेट लॉन्चेस देखे होंगे, अगर आप में से किसी लोगों ने कोई नासा के, इसरो के कुछ कोई भी सैटेलाइट लॉन्चेस या रॉकेट लॉन्चेस देखे होंगे, सो देयर इज दिस जोन इन एटमॉस्फेयर जहां पे ना मैक्सिमम प्रेशर होता है। उसको क्या मैक्स जी कहते हैं, कुछ तो कहते हैं, मैक्सिमम प्रेशर होता है। तो दैट इज थॉट टू बी वेरी क्रिटिकल। उसके पहले थोड़ा फाइट होता है, बट वो जोन में सबसे ज्यादा फाइट होता है। एक बार वो रॉकेट उसके ऊपर चला गया ना, तो रॉकेट बहुत इजीली ऊपर चला जाता है। तो मैक्सिमम पुल डाउन फोर्स जो होता है, या मैक्सिमम क्या कह सकते हैं उसको, रेजिस्टेंस जो होता है रॉकेट को ऊपर जाने के लिए, वो उस जोन ऑफ एटमॉस्फेयर में आता है। ये अगले 3 महीने, अगले 2 महीने, अगले 3 महीने शायद वो वाला जोन है आपके कैट प्रिपरेशन के लिए। हो सकता है कि हमारे लिए वो थोड़ा सा लास्ट वाला पंच जो है ना, वो पंच थ्रू बचा हुआ है। ये वही जोन है जहां पे मोस्ट ऑफ द रॉकेट्स फेल। ये वही जोन है, अगर आप स्टैटिस्टिकली देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रॉकेट्स भी, बहुत अच्छे अच्छे मिशन भी फेल हुए हैं। तो कैट में भी वही होता है। We have to get through this zone, we have to get through these few months, and you're going to do pretty well in the CAT examination. Is the time enough? It's enough if you prepare in the right strategy. With the right strategy, it's enough if you prepare in the right direction and with the right amount of dedication. My scores are stuck. ये भी एक चीज होती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे जो स्कोर्स है ना मॉक्स में, वो ऐसे लगता है कि एक ही जगह पे अभी आके अटक गए। इसके ऊपर एक थोड़ा सा और इन डिटेल वीडियो में बात करेंगे ना। आई विल गोइंग टू कम बैक ऑन दिस क्वेश्चन लिटिल बाय लेटर। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि माय स्कोर्स आर स्टक, तो यार हो सकता है कि कुछ मॉक्स के लिए, कुछ एग्जाम्स के लिए, या माय कंसेप्ट्स आर स्टक, माय प्रिपरेशन इज स्टक। स्कोर्स को भूल जाओ एक मिनट के लिए। My preparation is stuck. I'm not making any improvement in VA. I'm not making any improvement in QA. I'm not making any kind of improvement in LR and DI and so on and so forth. यार कोई भी टॉपिक अगर आप उठा लो ना, तो इट जनरली टेक्स अ फ्यू वीक्स बिफोर यू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स। एक तो हमारा अप्रोच कहीं पे तो गलत जा रहा है, आइदर वी आर मिसिंग आउट ऑन द अप्रोच which is what is causing this problem for all of us, या फिर हम लोगों की मेहनत कम पड़ रही है। दो चीजों में से एक चीज है। जो भी कोई चीज है उसको आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर काम करना शुरू करो। आपका जो स्कोर, जो आपको लगता है कि स्कोर स्टक हो गया है ना, ये चीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार जल्दी से ओवरव्यू देखते हैं कि कैट एग्जामिनेशन में अगले कुछ महीने आपका क्या, किस तरीके से प्रिपरेशन का प्लान होना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। कैट एग्जाम जो है ये बहुत ही सिमिलर है एक लंबी मैराथन भागने की तरह। पहले जब 3 घंटे का था तो तब तो शायद थोड़ा और ही ज्यादा था, बट अभी जब 2 महीने का है तभी भी काफी हद तक एक मैराथन की तरह आपका पूरा का पूरा कैट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन होता है। और अगर आपने रियलाइज किया होगा मैराथन में भी, जैसे मैंने रॉकेट्स में भी एक एग्जांपल दिया, एक ऐसे फटीक पॉइंट आ जाता है कि मुझे नहीं पता आप में से कुछ कोई लोग अगर मैराथन दौड़े या नहीं दौड़े, एक ऐसे फटीक पॉइंट आ जाता है, यू नो, कि वो 1 2 3 लैप या आखिरी के कुछ थोड़े बहुत लैप ऐसे बहुत ज्यादा जान पे आते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। But then just the people who keep on running one step at a time, one leg forward at a time, one leg forward, one leg forward, one leg forward. If we keep on moving forward, one topic, one question, one topic, one RC, one LRDI set, one LR set, one DI set, one maths ka question. These are the people who, you know, push through the marathon. These are the people who also push through the CAT examination. ये चीज उन लोगों के लिए भी important है जो लोग अभी ऐसे सोच रहे हैं कि you know it's getting real tough। मैराथन के बारे में सोचो, आखिरी के कुछ लैप्स के बारे में सोचो, डिफिकल्ट लगता है, बट यार एक बार आपका मैराथन बन गया, एक बार आपका कैट एग्जामिनेशन बन गया, तो IIM अहमदाबाद के बारे में सोचो, IIM बैंगलोर के बारे में सोचो, कोई भी टॉप IIM के बारे में सोचो, MDI गुड़गांव के बारे में सोचो, FMS के बारे में सोचो, SP जैन के बारे में सोचो। आपको वो कॉलेजेस में जाके सीखने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है उनके बारे में सोचो, जो प्लेसमेंट्स मिलने वाली है उनके बारे में सोचो, और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वन स्टेप एट टाइम, वन क्वेश्चन एट टाइम, वन स्टेप एट टाइम, वन क्वेश्चन एट टाइम, वन स्टेप एट टाइम आगे बढ़ते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चीज को अच्छे से कर लिया तो आपका ये एग्जामिनेशन बन जाएगा। यू नो, मैं कई बार मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ मेरे प्लस क्लासेस में कि कैट एग्जाम जब आप लिखते हो या कैट एग्जाम के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हो, तो ऐसे लगता है कि हम पानी में डूबे जा रहे हैं। ऐसे लगता है कि यू नो शायद मुझे तो बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, अरे बाप रे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं डूब जाऊंगी या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड आई से दिस टू अ लॉट ऑफ माय प्लस स्टूडेंट्स, आई से दिस इन अ लॉट ऑफ माय क्लासेस, कि just the students who keep on gasping for the air and who, you know,
sometimes just the students who keep on gasping for the air and who just keep up till the last moment कि हाँ ठीक है मुझे लग रहा है कि मैं डूब रहा हूँ, बट मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि चलो ठीक है ये तो उनसे होने ही नहीं वाला। आई एम जस्ट गोइंग टू कीप ऑन फाइटिंग आखिरी दम तक, पूरा पूरा फाइट जो लोग लगाते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना 99% के साथ एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। हम लोगों को पूरे के पूरे हमारे प्रिपरेशन में एक ही बार अच्छा स्कोर करना है, एक ही बार। कब? कैट के दिन। तो कैट के दिन तक अगर हमारे स्कोर्स वोलेटाइल भी रहे, कैट के दिन तक अगर हमारे स्कोर्स थोड़े बहुत आगे पीछे भी रहे, तो मैटर नहीं करता है। हम लोगों को एक ही दिन अच्छा परफॉर्म करना है जो कैट के दिन है। हाँ ऑफ कोर्स, इसका मतलब ये नहीं कि अभी चिल करते हैं, सर ने बोला एक ही दिन अच्छा, ऐसे नहीं। उसके लिए हम लोग जितना ज्यादा पहले कंसिस्टेंटली अच्छे से परफॉर्म करेंगे उतने हमारे चांसेस बेहतर है। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लोग जो है किसी वक्त पे ये सोचे कि हमारा प्रिपरेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। दिस इज द राइट टाइम एंड ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन व्हिच इज कैट। मैंने कहा कि कैट एग्जाम थोड़ा सा मैराथन की तरह होता है, तो मैं सोचा कि एक बार यार मैराथन किस तरीके से भागा जाता है इसके ना कुछ स्ट्रेटजीज भी आपके सामने लेके आओ, क्योंकि वो कैट एग्जाम के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। दे आर वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर द कैट एग्जामिनेशन। पहला, मैनेज योर एनर्जी एट द स्टार्ट ऑफ योर रेस, मेक श्योर द फर्स्ट फ्यू माइल्स आर यूज्ड टू ग्रेजुअली वार्म अप इनटू द गोल पेस। अगर आप में से कोई अभी अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहा है या अभी अभी शुरू किया है या करने का सोच रहा है, ऐसे भी कभी कभी होता है कि करने का सोच रहे, तो एकदम से फुल स्पीड में नहीं जाना है। हम लोगों को जिम जाते हैं तो एक ही दिन में पूरा का पूरा 100 kgs हमें बॉडी बिल्ड करने की हमारा प्लानिंग नहीं होता है, तो वो नहीं करना। थोड़ा थोड़ा स्लोली गेट इनटू द जोन। इफ यू हैव बीन ऑफ फॉर द प्रिपरेशन फॉर सम टाइम नाउ, इफ यू हैव बीन ऑफ of the preparation for a few weeks, for a few months, and now you want to get back in, start slow, but then know that you have a set deadline to meet in. Then create an effective flexible plan. Before you toe the start line, you should have an idea of what your goal and pace should be. Extremely important. They say that wars are not won, battles are not won on the battlefields, but they are won in the general's tent. क्या मतलब? जो जनरल की टेंट होती है, जो हमारा आर्मी को कमांड करने वाला जनरल होता है, जो हेड होता है, वो जो स्ट्रेटेजी बनाता है ना, उस स्ट्रेटेजी के ऊपर से डिपेंड होता है कि कौन वो वाला बैटल जीतेगा। तो हम लोगों का स्ट्रेटेजी कैसे बनेगा? हम लोग जो हमारा प्लानिंग करेंगे हमारा प्रिपरेशन का, वो हमारा स्ट्रेटेजी, और ये हमें हमारा कैट एग्जामिनेशन जिता के देगा। तो आपका स्ट्रेटेजी के ऊपर हमेशा बहुत रेगुलरली, मे बी हर वीकली करो, हर 15 दिनों में करो। ये नहीं कि स्ट्रेटेजी कंप्लीटली बदल दो, बट एटलीस्ट एक रिव्यू होना चाहिए। एक पहले इनिशियल स्ट्रेटेजी फिक्स करो जो आपके लिए आपको लगता है वर्क करेगी, और फिर उसके ऊपर एक रिव्यू होना चाहिए, ओके व्हाट आई डिड करेक्ट, व्हाट आई डिड रॉन्ग, और फिर उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाते हो। ब्रेक द रेस इनटू सेगमेंट्स। आपका जो सारे गोल्स हैं उनको अलग 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 टुकड़ों में डिवाइड करो, क्योंकि अगर आप कैट की तरफ देखोगे, ये कहोगे अरे यार इतना सारा पढ़ाई करना है, तो ऐसे लगेगा ये मुझसे नहीं होने वाला। बट ये आपसे हो सकता है अगर आप उसको छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेक डाउन करो और फिर उसे अचीव करने की कोशिश करो। तो ब्रेक द रेस इनटू सेगमेंट्स, ब्रेक योर प्रिपरेशन इनटू सेगमेंट्स, एंड देन गो अहेड एंड चेज देम एंड चूज टू रेस विद कॉन्फिडेंस। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि आप ये चीज कर सकते हो। देयर आर पीपल हु हैव डन दिस बिफोर यू, who didn't have the resources which you had. There are people who will do this after you, who don't have the resources which you have. आपके पास सारे रिसोर्सेस है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। तो इस रेस को, ये जो कैट एग्जामिनेशन का जो रेस है, इसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दौड़ो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। यू नो, ऑल इज वेल कह लो, कभी अगर दिक्कत लगे तो ऐसे ही आंख बंद करके ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बट हम लोगों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे शिद्दत के साथ, पूरे मेहनत के साथ दौड़ना है, पूरे मेहनत के साथ कैट के लिए प्रिपरेशन करना है। 99 डेज बचे, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है अभी, बहुत कम टाइम भी नहीं है, पर बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है। बहुत इनफैक्ट अगर देखोगे तो इट्स रियली रियली स्ट्रिंजेंट ऑन द टाइम। तो हम लोगों को अभी तक हो सकता था कि एक आध हफ्ता ऑफ ले लिए सर, ये कोई इश्यू हो गया सर, हमने थोड़ा सा दोस्त का शादी था तो हम चले गए सर, अभी हमारा कुछ तो फलाना ढिमकाना हो गया सर, तो हमने, हमारा पढ़ाई का मूड ही नहीं कर रहा था तो हमने सर थोड़ा सा 10 दिन पढ़ाई नहीं की सर। ये सब चीजें हो सकता है आज तक चलती होगी, इसके आगे अगले 99 डेज में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा जहां जहां पे पॉसिबल है वहां पे अवॉइड करो कि थोड़ा थोड़ा यू नो टाइम वेस्ट होने वाली चीजें, या इवन टेकिंग योर ब्रेन आउट एंड पुटिंग इट इनटू समथिंग, ये वाली चीजें। कोई नया सा अमेजॉन प्राइम पे सीरीज आ रहा है वो देख लूं, कोई नया सा नेटफ्लिक्स पे सीरीज आ रहा है वो देख लूं, ऐसी वाली चीजें थोड़ा सा अवॉइड करो। वो सारी चीजें अवॉइड करो जो आपका टाइम खाएगी, जो आपका एक ब्रेन का स्पेस खाएगी, जो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देगी।
अगर आपके पास टाइम है स्पेयर करने के लिए, go ahead and take a nap. It's a very good strategy. Go ahead and take a nap. It will help you refresh. It will at least not strain you down. It will at least not make you bug you down. It will not, और ऐसे अगर कोई नया सीरीज देख लिया तो बस उसी के डायलॉग घूमे जा रहे दिमाग में, वो भी नहीं होना चाहिए। अगला एपिसोड कब देखूं, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है ये सारे कुछ जो भी कोई डिस्ट्रैक्शंस है आपके कैट के प्रिपरेशन में, जो भी आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शन है, उनको थोड़ा सा बग डाउन करो। पबजी है, कोई दूसरा गेम है, कोई कुछ दोस्तों के साथ आपका एक रूटीन है, उसको थोड़ा सा अभी के लिए मेरे ख्याल से बैक फुट के ऊपर हम लोग पुट अप कर सकते हैं। कैट एग्जाम को अगर समझेंगे तो कैट एग्जाम किस तरीके से बनता है, वीआरसी है, होता है हमारा पहला सेक्शन, जिसमें हम पूरी तरीके से एग्जाम आपको ड्रेन आउट कर लेता है आरसीज पढ़ने से। इसके लिए रीडिंग की प्रैक्टिस चाहिए बहुत अच्छे से। डेली रीडिंग करोगे तो 99 डेज बहुत है, 50-60 डेज में विल सी अ वेरी गुड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट। एलआरडीआई है, जिसमें कैलकुलेशन इंटेंसिव डीआई होता है, जो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, एलआर आपको घुमा देगा। मैं एलआरडीआई और क्वांट पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे। मेरा एलआरडीआई का एक सुबह बैच चलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं। मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एलआरडीआई पढ़ाता हूँ हर दिन। जो सारे के सारे सेट्स में पढ़ाता हूँ, ये प्रीवियस मॉक्स में से या फिर प्रीवियस ईयर कैट एग्जाम में से आए हुए सेट्स है। आप इस वाले मेरे प्लस कोर्स को अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हमारा प्लान है कि पूरा कैट एग्जाम आने तक हर दिन सुबह दो घंटा एलआरडीआई पढ़ेंगे। अगर ये पढ़ लिया तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है एलआरडीआई सेक्शन के लिए। एलआरडीआई आपका यहाँ से पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। और जो हमारा आखिरी सेक्शन है, जो है हमारा क्वांट सेक्शन, यहाँ पर जो है हमारा क्वांट सेक्शन, अभी तक जो है आप इतनी तरीके से थके होते हो कि क्वांट सेक्शन में आप जो इजी क्वेश्चन है वहां पे भी गलतियां करते हो। क्वांट सेक्शन के बारे में ऐसे सोचो कि क्वांट सेक्शन खुद से डिफिकल्ट नहीं है, बट बिकॉज उसका सिलेबस इतना वास्ट है, हम लोगों को वो टॉपिक जो है डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाता है। इसलिए क्वांट सेक्शन को भी अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है क्वांट, थोड़ा सा यूनिक है क्वांट। आपके सोचने को, आपके कंसेप्ट्स को टेस्ट करेगा। अपने कंसेप्ट्स को जगह पे लेके आओ। शायद प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा टाइम आप क्वांट को दे रहे हो सकता है, मैं ये नहीं एग्री करता कि तीनों जगह पे कुछ अलग अलग टाइम देना चाहिए। हो सकता है कि क्वांट को थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लग रहा हो, बट जनरली टाइम जो है ऑलमोस्ट इक्वली स्प्रेड लगता है प्रिपरेशन को। एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर डूइंग ऑलरेडी इन इंग्लिश और इन मैथ्स और इन एलआरडी एंड सो ऑन सो फॉर्थ। बट हाँ, एक चीज जरूर है कि क्वांट का सिलेबस कवर करने के लिए आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू प्रोबेबली वीआरसी या एलआरडीआई एज वेल। तो इस तरीके से इन तीनों के तीनों सेक्शंस के बारे में अभी प्रिपरेशन होता है हमारा। और अगर एक क्रक्स में कैट का प्रिपरेशन को मैं बताऊं तो वो यही है कि कोई भी टॉपिक को उठाओ, उसके बेसिक अंडरस्टैंड करो, कांसेप्ट्स को, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ढेर सारी प्रैक्टिस करो, और फिर मॉक एग्जाम लिखो। ये तीनों एक चीज साथ में जब आपने कर ली तो आपका कैट का प्रिपरेशन हो जाता है। अभी आपको ये सोचना है कि आप इसमें से किस पॉइंट के ऊपर हो। क्या आप अभी कंसेप्ट ही बिल्ड कर रहे हो? अगर आप कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हो तो शायद आप थोड़े से शुरुआत वाले, आपका प्रिपरेशन का शायद शुरुआत है। क्या आप अभी प्रैक्टिस पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो? क्या अभी आपका कंसेप्ट हो चुका है, अभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहे हो कि अभी सबके नोट्स थोड़े बन चुके हैं, बट मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी है ताकि गलतियां ना हो, तो ये आपका सेकंड फेज हो गया। क्या अभी तक आपने बहुत सारे मॉक्स लेना शुरू कर दिया है, ये आपका थर्ड फेज हो गया। तो ये तीनों फेजेस इस तरीके से होते हैं एग्जाम में, और ये तीनों फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो ये एक बार थोड़ा सा देख लेना आप किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हो। 3 फेजेस जो होती है, जैसे मैंने बताया कि पहले कंसेप्ट बिल्ड करोगे, कंसेप्ट बिल्ड करते हो ट्राई करो कि कोई भी टॉपिक पूरी तरीके से स्किप ना करे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, जैसे क्यूए में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसे कुछ लग रहा है, तो एक आध टॉपिक जो बहुत ही कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है वो शायद आप साइड में रख दो। बट अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको बचपन से पसंद नहीं था, या आपका मैथ्स में वो टॉपिक के साथ जमता नहीं था कभी भी, बट अभी आपको कैट में समझ में आ रहा है कि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके एटलीस्ट बेसिक्स करके जाओ। सो ऐसे कि कभी भी जो है कोई भी टॉपिक को पूरी तरीके से स्किप मत करो। और अगर आप कंसेप्ट्स बिल्ड कर रहे हो तो कोई भी 2 अलग अलग कंसेप्ट्स को एक साथ में बिल्ड करने की कोशिश मत करो। ऐसे नहीं करना कि ज्योमेट्री भी मैं अभी पढ़ रहा हूँ और अरिथमेटिक भी पढ़ रहा हूँ। एक बार अगर ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो ज्योमेट्री पढ़ो उस हफ्ते के लिए, उस 3-4 दिनों के लिए, उस 5 दिनों के लिए, जितने दिन आपको ज्योमेट्री पढ़ना है उतने 3-4 दिनों के लिए ज्योमेट्री में पढ़ो, पूरा डूब जाओ ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री के समुद्र में डूब जाओ। पूरा 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व कर करके वो पूरा जो टॉपिक है पूरा ब्रेन में फिक्सेट हो जाना चाहिए। ये आपका मोटो होना चाहिए व्हेन यू आर बिल्डिंग अप द कांसेप्ट्स। फेज 2 होता है आपका प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ढेर सारी प्रैक्टिस, hundreds of questions on each of the topic। प्रैक्टिस के लिए कोई लिमिट नहीं है।
सचिन तेंदुलकर के बारे में ये चीज कही जाती है कि सचिन तेंदुलकर का करियर शुरू होने के बाद 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, बट 10 साल होने के बाद भी सचिन तेंदुलकर जब मैदान पे जाते थे तो वो नेट्स में जाके ढेर सारी प्रैक्टिस करते थे। जब जब उनका मैच होता था तभी भी करते थे, जब मैच नहीं होता था तभी भी करते थे, और जब मैच 10-15 दिन आगे है तभी भी करते थे। सो हम लोगों ने भी ये चीज बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारी जो कंसिस्टेंसी है, यही हम लोगों को बड़ा बड़ा रिजल्ट देगी। तो फेज 2 होता है आपका प्रैक्टिस, और फेज 3 होता है आपका मॉक्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इतना बड़ा फॉन्ट में इसको पुट अप किया हूं। मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी थोड़ा सा भी सिलेबस कवर किया है ना, थोड़ा सा भी, अगर 20-30% सिलेबस भी कवर किया है ना, तो शायद मॉक्स लिखना शुरू कर दो यार। मॉक्स लिखना शुरू कर दो, उनको एनालाइज करना शुरू कर दो, उनके साथ में सोचना शुरू कर दो। बाद में जो कोई भी स्कोर आएगा उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करते रहोगे। एग्जाम तक 25 to 30 मार्क्स का आपको टारगेट रखना है, और ये टारगेट आप किस तरीके से अचीव करोगे ये सोचो, और अपने पूरे पूरे जी जान के साथ मॉक्स का एक स्ट्रेटेजी बना के उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए लग जाओ। मॉक्स शुड बी एक्सट्रीमली कोर पार्ट ऑफ योर एंटायर प्रिपरेशन। 3 रूल है मेरे पर्सनल, 3 रूल जो मैं अभी ऑलरेडी बता भी चुका हूं, बट अगर मैं इसको 3 रूल्स में कहूं कैट में अच्छा स्कोर लेके आने के लिए कौन से 3 रूल्स है, तो पहला स्कोर है कि राइट अ लॉट ऑफ मॉक्स, बहुत सारे मॉक्स लिखो। दूसरा है, उससे भी इंपॉर्टेंट, एनालाइज एवरी मॉक। हर मॉक जो आप लिखते हो उसका अच्छे से एनालिसिस होना चाहिए। मॉक 2 ही घंटे की होती है, बट 2 घंटे के बाद में आपने 2-3-4 घंटे बैठना चाहिए उस मॉक के साथ में। ये क्वेश्चन मैंने क्यों सॉल्व किया, ये क्वेश्चन मैंने स्किप करना चाहिए था क्या, ये क्वेश्चन मैंने क्यों स्किप किया, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना चाहिए था क्यों मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया, क्या सिली मिस्टेक मैंने की, इन लोगों ने आरसी में इस तरीके से क्यों आंसर टिक किया, मेरा वाला कंसेप्ट कहां पे गलत हो गया, मैंने एलआरडीआई में सेट सिलेक्शन में किस तरीके से गलती की, मेरा एलआरडीआई का सेट कहां पे गलत हो गया, मैंने कौन से क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, मैंने कौन सा क्वेश्चन बहुत फास्ट करते करते अननेसेसरीली गलती कर दी। ये हो गया आपका पूरा एनालिसिस ऑफ मॉक। आपका पूरा प्रॉपर एनालिसिस ऑफ मॉक जब आप करना सीख जाओगे, जब करना शुरू करोगे, तो आपके स्कोर्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। अब सोचो आपके पास 30 मॉक्स है, आपने अगर 0 स्कोर पे भी स्टार्ट किया, और 30 मॉक्स में अगर आपने हर एक एग्जाम में पिछले एग्जाम के रिलेशन, पिछले एग्जाम के कंपैरिजन में ये एग्जाम में 2 क्वेश्चन सही किए, मतलब पहले हमने 0 क्वेश्चन सही किए थे, अभी हमने 2 क्वेश्चन सही किए, अगले इसमें 4 क्वेश्चन सही किए, अगले इसमें 6 क्वेश्चन सही किए। अगर एक बार पूरी मॉक लिखे, उसका पूरा एनालिसिस करें, और उसके बाद में अगली मॉक लिखने जाए, तो पिछले मॉक के कंपैरिजन में 2 क्वेश्चन तो सही और कर ही सकते, तो भी अगर आप 30 मॉक लिखोगे तो आपके 60 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 60 into 3 180 स्कोर होता है, किसी का नहीं आता 180 स्कोर होता है एग्जाम में। आपके 228 मार्क के कैट में से 100 मार्क्स अगर लेके आओ, 105 110 अगर लेके आओ, तो आपका श्योर शॉट 99% है 105 110 मार्क्स के ऊपर। पिछले साल हमने देखा हुआ था, उसके पहले का भी रिकॉर्ड रहा है कि 50 से 60% मार्क्स के बीच में आपका जनरल 90 परसेंटाइल रहता है। 70 परसेंटाइल तक अगर आप पहुंच सके, अगर कुछ करके आप 70 परसेंटाइल मार्क्स को लेके आ सके, 70% मार्क्स को अगर आप लेके 70% तक अगर आप पहुंच सके, तो 70% अगर आप लेके आए तो आपका परसेंटाइल 100 हो जाता है। तो आप सोच लो, हमारा टारगेट जो है मॉक्स में, हाँ जरूर 130 140 होना चाहिए, 135 140 होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज एम फॉर द हायर, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को बग डाउन करेंगे अगर हमारे स्कोर्स वहां तक पहुंच नहीं रहे, और इसका मतलब ये भी नहीं कि अभी टाइम बहुत कम बचा है। अगर हमारा स्कोर वहां तक नहीं आ रहा है तो अभी तक हम लोग पहुंचेंगे। अभी हमने साइकिल चलाना सीखना शुरू किया है, गिरेंगे, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 50 बार गिरेंगे, हर बार उठ के खड़े हो जाएंगे, चाहे हमें बहुत ज्यादा लगा हो, चाहे हमारे यहाँ से खून निकल रहा हो, हर बार साइकिल से गिरने के बाद उठेंगे, फिर से जाएंगे, और फिर से उसी तरफ खुद को एक गोल की तरफ देख के साइकिल चलाने की कोशिश करते जाएंगे। ये करते रहेंगे जब तक हमारा एग्जाम में मार्क्स आना शुरू ना हो जाए। तो ये है होता है एनालिसिस ऑफ मॉक। और रूल नंबर 3 जो है हमारा, वो है रिपीट रूल 1 एंड रूल 2। रूल 1 और रूल 2 को लीजिए एक साथ में और इनको रिपीट करिए। क्या थे हमारे रूल 1? राइट अ लॉट ऑफ मॉक्स, एनालाइज एवरी मॉक्स। राइट अ लॉट ऑफ मॉक्स, एनालाइज एवरी मॉक। आपका कैट एग्जामिनेशन हो गया। Believe me, I've taught and trained thousands of students into top B schools right now. This strategy never fails, and someone who goes in, there will be very few or almost none people who go into the CAT examination without writing a lot of mocks or analyzing a lot of mocks and yet still go ahead and crack this examination. If you want to do the CAT examination right, this is a core part of your strategy, and this strategy kicks in right now. When we are 99 days away from the examination, we at least need to start with mocks. We cannot say okay, देखेंगे अभी तो बहुत टाइम है, नहीं,
You need to start with mocks, regardless the score. Make a good strategy. Analyze, आपके mocks के scores क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि हम लोग analysis नहीं करते हैं. एनालिसिस सही से होना चाहिए. अगर एनालिसिस सही से होना शुरू हो गया तो हमारे मार्क्स भी जो है वो सही से बढ़ना शुरू हो जाएंगे. तो ये है रूल 2, रूल 3, तीन रूल्स, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ हाउ टू स्कोर गुड इन द कैट एग्जामिनेशन. ठीक है. तो यार एक बार जस्ट बिफोर आई गो अहेड एंड कंक्लूड ये वाला छोटा सा वीडियो, एक बार जल्दी से टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं. अभी हम लोग हैं, अभी 15 अगस्त हो गया, अभी हम लोग हैं 21 अगस्त में. 28 अगस्त से एग्जैक्टली 3 मंथ्स बचेंगे. अगस्त के आगे जो हमारे 3 महीने बचे हैं, अगर हमारा अब तक कंसेप्ट सही से बिल्ड नहीं हुआ है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर स्टैंडिंग, ट्राई करो कि अगले 1.5 महीने में आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो एक बार तो आप कंसेप्ट्स बिल्ड कर लो. सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो सितंबर या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते तक ट्राई करो, या अक्टूबर के मिड तक एट मोस्ट ट्राई करो कि हम लोग का पूरा ये बन जाए. अगर आप अभी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, जिन लोग का हो चुका है, अगला 1 महीना आपका रिवीजन होना चाहिए. बहुत तगड़ा प्लान बनना चाहिए रिवीजन के लिए. अगला पूरा का पूरा 1 महीना जो है, सितंबर का जो महीना, ये पूरा का पूरा 1 महीना जो है रिवीजन होना चाहिए. इस महीने में जब आप रिवीजन करोगे तो अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उठा लिया तो उसके वो कर दो, एक 50, 60, 100 क्वेश्चन सॉल्व. परसेंटेजेस उठा लिया, कर दो 50, 60, 100 क्वेश्चन सॉल्व. रेशियोज 50, 60, 100, ज्योमेट्री 50, 60, 100, अलजेब्रा 50, 60, 100, आरसीज, पैराजंबल्स, भर के हर दिन पूरा जी जान लगा के अगला 1-1.5 महीना पूरा का पूरा जो कुछ भी बचा हुआ है, थोड़ा सा ये टॉपिक रह गया था, ये टॉपिक रह गया था, ये टॉपिक रह गया था, उसको कर लो. साथ में मॉक्स लिखो. जनरली ट्राई करो कि बिकॉज वी हैव 99 डेज, हर तीसरे दिन अगर मॉक लिखोगे तो यू विल कंप्लीट 33 मॉक्स. तो हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन आपका मॉक का एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कितने आपने मॉक्स किए हुए हैं. मॉक के स्कोर्स नहीं भी आए तो भी अगर मॉक का खत्म होने के बाद में आपने उसको एनालाइज किया तो आपने को उसमें एक इंप्रूवमेंट का स्कोप दिखेगा, और ये जो इंप्रूवमेंट का स्कोप है ये आपको बहुत हेल्प करेगा ग्रेजुअली स्कोर इंक्रीज करने के लिए. एक चीज ट्राई करना कि आपने जो चीज पढ़ी हुई है उसमें की अगर कोई चीज मॉक में आए, पूछी जाए और आपको उससे सॉल्व ना हो, तो उसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है जब तक आपका वो टॉपिक जो है फिर से गलती नहीं होनी चाहिए. अगर मैंने टीएसडी पढ़ा हुआ है, टीएसडी का क्वेश्चन है एग्जाम में, अगर मुझसे सॉल्व नहीं हुआ तो उसका एग्जाम होते से ही मुझे उसको सही से लिख के लेना है, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, मैं क्यों नहीं ये सोच पाया, तो उस तरीके के 2-3 क्वेश्चन लेके मैं प्रैक्टिस कर लूंगा. इससे अगली बार वो गलती रिपीट नहीं होगी. तो ये होना चाहिए हमारा टाइमलाइन. आखिरी का 1-1.5 महीना जो है, आखिरी का 1-1.5 महीना मैं मॉक्स ही लिखने प्रेफर्ड करूंगा मैं, कि जितने ज्यादा हो सके उतने मॉक्स लिखो. हाँ, रिवीजन भी चलता ही रहेगा, बट मॉक्स एक हमारा टाइमलाइन में एक बड़ा फैक्टर रहेगा. लास्ट वाला 1 महीना 1.5 महीना, तब तक के लिए जितना जल्दी थोड़ा मेजॉरिटी ऑफ योर सिलेबस को कवर अप कर लोगे, तब तक आपका जो है प्रिपरेशन ऑन द राइट रूट रहेगा. तो चलिए, ये सब चीजें थी जो मुझे आपसे बात करनी थी. पूरे के पूरे 99 डेज का हमारा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कैट एग्जामिनेशन के लिए, इस टॉपिक के ऊपर. अगर आपको ये आपको वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने ऑलरेडी कैटलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अनअकैडमी का ये जो कैटलिस्ट चैनल है जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसको जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए. इसके ऊपर बहुत अमेजिंग से वीडियोस बनते रहते हैं कंटिन्यूअसली. बहुत सारे इंडिया के जो टॉप के एजुकेटर्स है, इंक्लूडिंग जैसे अरुण शर्मा सर को पकड़ लो आप, कोई भी टॉप, अरुण शर्मा सर के तो सारे कैट के बुक्स ही सर के है, राइट. तो अरुण शर्मा सर भी यहाँ पे पढ़ाते. कोई भी टॉप के एजुकेटर्स आप पकड़ लो, वो इस चैनल के ऊपर लाइव भी पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड भी पढ़ाते हैं. उनको जो कुछ भी स्ट्रेटेजी कंटेंट होता है, उनका जो कुछ भी पढ़ाई का कंटेंट होता है, वो इस चैनल के ऊपर सेंड आउट करते रहते हैं. तो जल्दी से जो है ये सब्सक्राइब बटन आपका दब जाना चाहिए. दबाओ, अभी 1 सेकंड के लिए मैं रुकूंगा. जल्दी से जाओ नीचे, सब्सक्राइब बटन दबाओ, और साथ में जो बेल आइकन है वो भी दबा दो, ताकि हर बार कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उस चीज के बारे में नोटिफिकेशन आए, आपको अगली बार अपडेट मिले, ताकि आप लोग का कैट का प्रिपरेशन का कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आप लोग मिस आउट ना करो. तो जल्दी से कैटलिस्ट चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है. और अगर आपको मेरे साथ अनअकैडमी पे फ्री लाइव लेक्चर्स देखने हैं या अदरवाइज भी, तो अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लो जल्दी से. आपको प्ले स्टोर, गूगल स्टोर में मिलेगा, अनअकैडमी लर्नर ऐप करके मिलेगा आपको. इसको इंस्टॉल कर लेना है आपने. इंस्टॉल करते से एक इस तरीके की स्क्रीन आएगी, स्टार्ट लर्निंग ऑन अनअकैडमी करके. तो ये स्टार्ट लर्निंग ऑन अनअकैडमी पे गेट स्टार्टेड करके आपका एक बेसिक प्रोफाइल आपने जब बना लिया, तो अगर आपको मेरे साथ पढ़ाई करना है तो यू कैन सर्च मी आउट, अजिंक्य चोपड़े. जब आप कैट गोल सिलेक्ट करोगे तो आपको सारे एजुकेटर्स वहां पे मिल जाएंगे. यू कैन सर्च आउट फॉर मी बाय टाइपिंग इन माय नेम. यू कैन सी मी ओवर हियर and you can go on to my profile, click follow,
and you can see a lot of my special classes. नाउ जब आप स्पेशल क्लासेस देखने के लिए जाएंगे तो आपको एक छोटा सा अनलॉक कोड मांगेगा अनअकैडमी। तो अनअकैडमी पे आप ये अनलॉक कोड टाइप इन कर सकते हो AJK लाइव, AJK लाइव। ये कोड इंश्योर करेगा कि आपको जो भी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल सकता है अनअकैडमी पे, अनअकैडमी ऐप के ऊपर, ये पूरा का पूरा जो एक्सेस है ये फ्रीली मिल जाएगा AJK लाइव। चाहे आप कॉम्बैट लिख रहे हो, चाहे आप मॉक्स लिख रहे हो, फ्री वाले मॉक्स लिख रहे हो अनअकैडमी पे, चाहे आप फ्री वाले स्पेशल क्लासेस कर रहे हो अनअकैडमी पे ऐप के ऊपर, तो आपको सबका सब फ्री एक्सेस मिल जाएगा। AJK लाइव इस कोड को आपको यूज करना है। इतना ही नहीं, जो लोग भी प्लस सब्सक्रिप्शन को प्लान कर रहे हैं, जो भी लोग प्लस पे आके पढ़ना चाहते हैं, जो भी लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी पे इन पे आके पढ़ना चाहते हैं, वो लोग भी अगर ये वाला रेफरल कोड यूज करेंगे AJK लाइव तो उनको भी एक्स्ट्रा का 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस रेफरल कोड को यूज करना मत भूलना। AJK लाइव आपको मेरे साथ पढ़ने का भी मौका मिलेगा। मैं हर दिन प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर 3 से 4 घंटे पढ़ाता हूं, तो आप लोग भी साथ में आ सकते हो, हम लोग साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड विल एंश्योर कि हम लोग का जो है 99 परसेंटाइल यहाँ पे आ जाए। अभी देखो ढेर सारे बैचेस जो है वो अनअकैडमी पे रेगुलरली लॉन्च होते रहते हैं। जैसे अभी एक्सक्लूसिव LRD बैच हुआ है, टारगेट बुलजाई हुआ है, फिर एम फॉर कैट 2022 का भी अभी एक नया बैच शुरू है। जो लोग 2022 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी, मैं भी अभी एक 2022 के लिए एक नया सा बैच पढ़ा रहा हूँ। तो आप जिस भी किसी लेग के ऊपर हो ना प्रिपरेशन के, आप अगर प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हो तो आप बेनिफिट करोगे, आइकॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हो तो आप बेनिफिट करोगे। आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक में आपको लाइव मेंटरिंग मिलती है। जो भी कोई MBA एस्पिरेंट्स हो आप, तो आपको अगर सोचो आपको प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कोई पढ़ा तो रहा है, बट पढ़ाते पढ़ाते अगर आपके खुद के एक बड़े भैया ने अगर कैट क्रैक किया होता और वो फिर आपको बताता कि पता है अजिंक्य, तू ना एक काम कर, ये वाला चीज ट्राई करके देख, पता है ये वाला तुझसे नहीं बनना ना, तो तू इस तरीके से सोच के देख, अरे तू ना अगले 1 महीना ना ये तेरा स्ट्रेटेजी या प्लान बना, तो कितना बढ़िया होता है। समवन हु हैज ऑलरेडी बीन इनटू एन IIM इज गोइंग अहेड एंड टीचिंग यू वन ऑन वन, लाइव मेंटरशिप हो रही है आपकी। तो ये आपको मिलता है आइकॉनिक में। पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है आपको, एक मेंटर मिलता है। ये मेंटर आपको वन ऑन वन गाइड करता है कि बेटा आपको इस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, अभी आपका जो ये दिक्कत है ना ये इस तरीके से सॉल्व होगा। जो भी कोई आपके डाउट्स है वो वन ऑन वन बैठ के आपके साथ में सॉल्व करेंगे। तो ये आइकॉनिक भी बहुत बढ़िया सा एक प्लेटफॉर्म है, एक सब्सक्रिप्शन है जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। 3 तरीके के लेक्चर्स होते हैं अनअकैडमी पे। स्पेशल क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सब लोगों को देखने के लिए, तो ये तो जरूर देखिएगा, AJK लाइव ये कोड को यूज करके उनको अनलॉक कीजिएगा। दूसरे जो प्लस क्लासेस है, प्लस क्लासेस में सब कुछ पेड कंटेंट है, बट इतना बढ़िया सा और इतना सारा कंटेंट है इसमें कि अगर आप कैट के प्रिपरेशन को सीरियसली करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा प्लस कोर्सेस आपको। तो एक जो प्लस प्लेटफॉर्म है, और तीसरा जो है वो आइकॉनिक है, जिसमें आपको प्लस का सब कुछ मिलता ही मिलता है, बट साथ में आपको जो है वन ऑन वन मेंटरिंग भी मिलता है एजुकेटर्स के साथ में, जो आपके वन ऑन वन मेंटर्स होते हैं उनके साथ में, और वो आपको हेल्प करते हैं आपके प्रिपरेशन के थ्रू। तो इस चीज के बारे में सोचना। इतना ही नहीं, अभी एक बढ़िया सा ऑफर चल रहा है। अगर आप 12 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको एक एक्स्ट्रा के 3 मंथ्स फ्री मिल जाते हैं। तो सोचो अभी से लेके अगर आप प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हो, सो वी आर ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड 3 मंथ्स अवे। 22 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, 12 मंथ्स के ऊपर 3 मंथ्स एक्स्ट्रा, 24 मंथ्स के ऊपर 3 मंथ्स एक्स्ट्रा। सो चाहे आप 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप जो है इस बढ़िया से ऑफर को यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और जो भी लोग स्कॉलरशिप टेस्ट भी लिखना चाहते हैं, बढ़िया सी स्कॉलरशिप टेस्ट होती है अनअकैडमी के ऊपर, इसके बारे में बताता हूँ। इसको कैटलिस्ट कहा जाता है। तो ये वाला कोड जो है इसको आप स्कैन कर सकते हो, रुक के इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको कट करके स्कैन कर सकते हो तो जाना है तो। नहीं तो ये जो कैटलिस्ट है ये हर संडे को होती है, 12 बजे होती है, और ये कैटलिस्ट में जो है आपको ना कई सारे ढेर सारे ना प्राइजेस मिलते हैं। जैसे जो अगर आपका अच्छा रैंक आ गया तो आपको कैट का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। रैंक 4 to 10 आ गया तो आपको 75% स्कॉलरशिप। तो बेसिकली ये स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो अगर आप लोग को लगता है कि आप अच्छे से परफॉर्म कर सको, और लिख के देखो यार, बहुत लोग जो है ना यहाँ पे से स्कॉलरशिप अच्छा उठाते हैं, तो स्कॉलरशिप को उठाओ और स्कॉलरशिप को लेके अपना सब्सक्रिप्शन लेके हमारे साथ प्लस में पढ़ने के लिए आ जाओ। तो इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना, ठीक है। तो ये सारा चीजें था अनअकैडमी के बारे में। मैं जनरली हर लेक्चर को, हर वीडियो को एंड करता हूँ एक कोई अच्छे कोट के साथ। ये रहा मेरा आज का कोट। You've got only 3 choices in life, and I think even standing right now over here, we're 99 days away from the CAT examination, we have gotten 3 choices. Give up, एक तो हम कहेंगे कि मुझसे नहीं हो रहा है, give in, तो हम छोड़ देंगे, या give it all you have got, पूरी तरीके से हम लोग जो है उसको
पाने के लिए एक आखिरी पंच, एक आखिरी पूरी तरीके से ट्राई करेंगे। तो आई थिंक हमारा चॉइस पक्का पक्का यही होना चाहिए, गिव इट ऑल योर गॉड। हम लोग जो अगले 99 डेज के लिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत जी जान लगा के पढ़ेंगे, और मैं जो है आप सब लोगों को IIMs में देखूंगा, सब लोगों को टॉप 20 स्कूल्स में देखूंगा। तो आपके इस पूरे के पूरे कैट प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक और पढ़ते रहो।